ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲਯ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਕਿਆ ਹੂੰ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਅਕਥ ਨ ਕਥ ਨ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉ ਕਾ ਇਸਤਨ ਤਾਹੀ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮੇ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮੇ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ। ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ। ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਿਆ ਝਾਟੇ ਪਾਏ। ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹਸੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੈ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕੌਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਘਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪੈ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਕੋਲ੍ਹੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਿਰੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੰਤ। ਲਾਟੂ ਬਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆਂ ਲੈਨ ਨਸਾਹਾ। ਸੂਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ। ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਚ ਨਚ ਹਸੈਂ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੜ ਨ ਜਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਨ ਹੋਏ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ। ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨਿਜ ਸਦਾਈਏ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਪਾਈਏ। ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਰਥ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਹਾਂ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਅਸਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਥ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਗਾਹ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਅਸਗਾਹ ਜੋ ਗਹਿ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਥ ਹੋਵੇ, ਹਾਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਥ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹਾਥ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਹਾਥ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ।
जिस सुरती कागर हो जाती है वो सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, दास बन जाता है। हाथ होवे सगा जिस सुरती कागर हो जावे, सुनदा नाम नूं बाणी नूं तां सगा दा अर्थ है समुंदर। समुंदर मामूली हो जाता है। हुण भाव अर्थ की होया, समुंदर किहड़ा है, मामूली होना किहड़ा है, संसार समुंदर तार गोबिंदे। संसार रूपी समुंदर विचों पार हो जाना ਉਹਦੇ ਲਈ मामूली है। ये हो गया भाव अर्थ। संसार समुंदर तो पार हो जाना ਉਹਦੇ सौखा हो जाता है। संसार समुंदर है। गुरु महाराज ने कहा है कि संसार की समुद्र सारा निवास होया है, तित सरवरड़े भैले निवासा। सारा इस सरोवर विच समुद्र विच निवास होया है। संसार समुद्र दे विच पानी पावक तिन्ने किया, जिथे पानी भी है अग भी है। समुद्र के अंदर पानी भी हुंदा है, अग भी होंदी है। समुद्र की जिहड़ी अग है उसका नाम है बड़वा ना लगनी। शास्त्रों से लिखा है कि समुद्र के अंदर एक ऐसा थां है जिथे 7 समुद्रां दा पानी इकट्ठा होकर थले जाता है, पताल जाता है। पता नहीं कि डूंगी थां है। उस दे बारे लिखे शास्त्र, उसका नाम लिखे गराड़। गराड़ गराड़ है। उस इतनी अग है थले कि जिमें पानी ने साड़ रखा है, अग है। समुंदर के अंदर अग भी है तो पानी भी है। संसार समुद्र केड़ा पानी है? संसार समुद्र के अंदर पदार्थों का पानी है। जे पानी च डुब के बंदा गर्क होंदा है, इस तरह पदार्थों दे विच डुब के बंदा गर्क होंदा है। अग केड़ी है? ये संसार में अग केड़ी है? ईर्ख और तृष्णा। तृष्णा की अग विच सड़ी जाता है, रजदी नहीं है। ऐसी अग है जितना पाया पानी सड़ी जाता है। तृष्णा सैस घटे लाखों उड़ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग विख्या के करे न तृप्तावे, खपका मरे बिना संतोष नहीं को राजे। स्वर मनोरथ बिरथे सब काज। भाव है कि गुरबाणी के अंदर बहुत डूंघे प्रमाण हैं जिन्होंने समझण के वास्ते विचार करनी पैंदी है। आशा दी वार की पौड़ी की विचार चल रही है। आशा दी वार कितना फर्क है? श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आसेवा लिखी है, उत्थे श्लोक हैं तो पौड़ियाँ हैं, छंद नहीं हैं। पर जब कीर्तन होंदा आशा दी वार दा, पहले छंद पढ़िया जाता है, फिर श्लोक पढ़े जाते हैं, फिर पौड़ी पढ़ी जाती है। जब वार का पहला स्वरूप सी, सब तो पहला गुरु नानक ने उचारी, उसने सिर 24 पौड़ियाँ सन कलियाँ। श्लोक बाद ऐड किए गुरु अर्जन साहब ने।
भगवत जी ने सूचना दी कि ਇਹ श्लोक मैं ऐड कर रहा हाँ वाल श्लोका नाल श्लोक भी भले पहले के लिखे। ये पौड़ियाँ ने उस तरह जुड़ी हुई ने आपस में जिमें संगली की कुड़ी नाल कुड़ी जुड़ी होती है। चार पौड़ी विचार हो चुकी है, पंजी पौड़ी विचार चल रही है। चार पौड़ी दस्या है कि सब तो पहले वागुरु ने अपने आप पैदा किया, अपना नाम ही आप रचिया। दूसरी कुदरत पैदा की, सृष्टि पैदा की, रचना रची। फिर उस कुदरत आप आसन लगा के बैठा होया है, चला रहा है और सब कुछ देख रहा है। जी पैदा किए जीवां दे चंगे मंदे कर्म लिखण वास्ते राज ने बिठा दिता। जो नाम च रंगे गए जीवन सफला कर गए, जो भोगज पै गए वो जीवन मिर्था गवा गए। जेरे जीवन मिर्था गवा क्यों गवा गए? आप पै गए, होमज पै गए, भोगज पै गए, जन्म गवाया, मैं अद्धे जन्म गवाया। जब सफला किवें होवे दस रहे ने, सफला जन्म तां होंदा है कि वागुरु की कृपा होवे ते पूरा गुरु मिल जाए। गुरु उपदेश दे करके अंदर होमे कढ़ दिंदा है, सच नाल जोड़ दिंदा है, जीवन सफला कर दिंदा है। ये जीवात्मा जो अनेकों जूने भरम रही है, सच नाल जोड़ दिंदा है। सच नाल जुड़ना ही जीवन की सफलता है। जब तक सच नाल नहीं जुड़दा चक्कर चलता रहेगा, जमदा मरदा रहेगा, आंदा जांदा रहेगा जूने के अंदर, कदे किसी जूने कदे किसी जूने के अंदर। सच नाल जोड़दा है गुरु, नाम नाल जोड़दा है, जो सफला कर दिंदा है। और कहते हैं कि वागुरु की कृपा बगैर गुरु नहीं मिलता। तो गुरु की कृपा बगैर वागुरु नहीं मिलता। एक स्थान रखा है, वागुरु की कृपा होवेगी तो गुरु मिलेगा, गुरु की कृपा होवेगी तो वागुरु मिलेगा। इन्होंने दोवां पौड़ियां विच गुरु की उपदेशी व्याख्या की है पौड़ी नंबर 5 के अंदर कि गुरु 5 गल्लां समझा करके अंदर होमे कढ़ के नाम नाल जोड़दा है। किहड़ियां 5 गल्लां उहदी विचार चल रही है 5वीं पौड़ी की। सब तो पहले गुरु नाम नाल जोड़दा है। गुरु तो बगैर होर जो यतन होंदे ने, उन्हें जिक्र किया श्लोकां दे अंदर कि कुछ लोग उन्हें मगर लग जाते हैं, जिमें कि कृष्ण भगवान होए रासलीला करते हैं, उन्होंने बारे जिक्र किया है। ये की है कि घड़ियाँ सभे गोपियाँ पैर कन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुझसे ज्ञान में होने खा गया जमका। वान चेले वेखो जरा सरज बात है, चेले वाजिब जाते हैं नचन गुर, जो गुरु कृष्ण भगवान गुरु बने हुए ने वो नचते हैं टपते हैं। कैसी सरज बात है। ये सब लोग ये सारिया जो घड़िया ने ये गोपियां
ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਵਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆਨ ਗੁਣੀ ਖਾਏਗਾ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾਏਗਾ ਜਮਕਾਲ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਰਾਵੇ ਝਾਟਾ ਪਾਏ। ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਘਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੀਲਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਉ। ਉਹਦੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹਾ, ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ, ਸੂਬੇ ਚਾੜ ਬਵਾਈਏ ਜੰਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਭੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਬੜ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੈ ਕਿਦ ਨਚੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਜ਼ਰ ਹਸੇ ਚਲੇ ਸੋਏ, ਉੱਡ ਰਾਵੇ ਝਾਟਾ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹਸੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾ ਜੇ ਮਨ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਡਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੌਣ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਚਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨ ਏਕ ਤੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਕੋਈ, ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮਨ ਰੱਬ ਮਨ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਖੁੰਡ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਵਾਈ। जो रूप बनाना चाहे बना। जैसे जैसे किसी भगत की भावना होए, भगत की भावना पूरी करन लई उस रूप आ जाता है। तो अपना कोई रूप नहीं है, अपनी कोई शक्ल नहीं है। जैसे जैसे किसी भगत की भावना होती है उस रूप आ जाता है। नाम तेरा निरंकार है, ना लइए नरक न जाइए, जो नाम जपेगा नरक च नहीं जाएगा। दूसरी बात गुरु समझाता है, वेख लो जो कुछ तुहाडे कोल है, जियो पिंड सब तिसदा, जीव आत्मा तो लैके पिंड शरीर तक सब कुछ ओदा है, तारा कुछ भी नहीं है। जीवात्मा तुहाडी नहीं है, तो रख नहीं सकते जीवात्मा को। शरीर तुहाडे वास च नहीं है, तुहाडा नहीं है, तुहाडे कोल नहीं रहना। जे तुहाडा होवे तुहाडे कब्जे च रहे,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾ ਲਓ ਜ਼ੋਰ, ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਖਾਓ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਦੇਖੋ, ਹੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹੂੰ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰੀਆ, ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ। ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਨ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ। ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਕਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तुम्हारा सुख रखे, जींदे रहे तो बाकी के विचार सवेरे करांगे। हाँ, 9:15 बजे तक चलो। कर पुन्नो निश्चद आइए, पुण्य कर्म करदा होया अपने आप निश्चदा। निम्रता विच रहो, गरीबी विच रहो, हम विच नहीं आना। शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके ते सतावने नीच। कहो नानक हम नीच कर्मा सन परे की राखो शर्मा। हम विच नहीं आना, हंकार च नहीं आना। जे हंकार आ गया तो तीर्थ व्रत अर दान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जादते जो कुंचर स्नान। हाथी का स्नान है, हाथी स्नान कराओ से मिट्टी पा लेंदा है। पुण्य कर्म किते हुए ये हमें आ गई, मैं कीता, मैं ये कीता, मैं वो कीता, मैं वो कीता, वो कीता, सिर्फ मिट्टी पानी है। निम्रता ही रहना है। अमृतसर दरबार साहब के रागी कीर्तन करता सी, नाम लिखे भाई मनसा सिंह। वो आया लहदे देश विचों, उन्होंने लिया संत भाई दुख भंजन जी कि चल तुम दर्शन कराई। हरमंदर साहब आके स्नान किए, दर्शन किए, कीर्तन सुनिया। तो भाई मनसा सिंह ने भाई दुख भंजन को कहा, महाराज दिल करता है कि मैं श्री गुरु रामदास साहब जी को कीर्तन सुनावा। देखो भावना, गुरु रामदास की कीर्तन सुनावा।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, कैसी कुदरत है। हे रबा तू कैसी कुदरत पैदा की है, कैसे सोने फुल पैदा किए हैं, तो कैसी वनस्पति पैदा की है। कुदरत वेख के रब नाल जुड़ जाना। एक निर्गुण स्वरूप है, एक सरगुण स्वरूप है। कुदरत सरगुण स्वरूप है। कुदरत नूं वेख के नाम नाल जोड़ना, कादर नाल जोड़ना ते नाम का अभ्यास करना अंतरात्मे दो ही तरीके हैं। कुदरत नूं वेख के कादर नाल जुड़ जाना ते गड़ा मरदाना रबाब छेड़ बाणी आई आ। कीर्तन करना गुरु नानक ने जंगलों में लिखे जन्म साखी च कि दरख्तां चों भी रस चोण लग जाता सी। अज की साइंस ने सिद्ध किया है कि राग का प्रभाव वनस्पति ते पैंदा है। वनस्पति राग सुनती है, जी छिम पकड़ी होंगी चावल पक जाती है। राग उत्ते पाया जाए तो राग सुनी भावे। तो जो लिखे जन साखी च कि दरख्तां चों भी रस चोण लग जाता सी। दरख्त भी कीर्तन सुनते सन गुरु नानक दा। गुरु नूं सुनाना कीर्तन, गुरु नूं रब नूं सुनावना है, गुरु नूं सुनावना है। भाई दुखभंजन साहब ने क्या गल करदियां सिंह साहब नाल, तो सिंह साहब सानूं सवेरे यानी हजूरा सिंह, भाई वीर सिंह दे नाना जी साडे नाल रागी है। उसकी इच्छा है मैं शब्द पढ़ा हरमंदर साहब के अंदर। बड़ी पढ़ो बड़ी खुशहाल पढ़ो, खुल है उस सारे खुल सी। उससे ज़्यादा रागी होंगे बाबी मुसलमान, पेड़ नहीं सी आते। अजकल तो पेड़ हो ना सारे, सिर पेड़ नहीं कर सकते रागी, होर कोई तो नहीं कर सकता। उत्थे शब्द रखी हुई है, उसने कोई करे खुल सी सारे मुसलमान करन हिंदू करन कोई करे। करो जी, टाइम मिल गया। मैं मनसा से कीर्तन किया किस रंग में, किसी मस्ती के अंदर। गुरु सुना कीर्तन गुरु नूं ऐ समझा गुरु रामदास कीर्तन सुन रहे ने। इस हिले विच, इस लगन विच, बड़ी मस्ती विच कीर्तन किया। बाहर आए तो कहते भाई दुखभंजन साहब महाराज बड़ा आनंद आया है, चित प्रसन्न होया है। ऐ लगता है कि गुरु रामदास साहब आप कीर्तन सुन रहे सन। मेरा मन बड़ा प्रसन्न होया है, भिज गया है। दिल करते मैं रोज़ कीर्तन करा, इतने रोज़ सुनावा कीर्तन गुरु रामदास नूं। अज दुखभंजन साहब कहन लगे बड़ी चंगी गल है, बड़ा शुभ विचार है। जे तरह ऐसा विचार है असी प्रबंध कर देंगे हाँ, पर एक गल है जे तू कीर्तन सुनाना है गुरु रामदास नूं तो फिर तनख्वाह नहीं लैनी।
कहता नहीं लवांगा। दूसरी शर्त यह है कि जे तू कीर्तन सुनावना गुरु रामदास नूं तां कीर्तन करदिआं शब्द भेंट भी नहीं लैनी, कहता नहीं लवांगा। फिर संत कह लगे ये तो फिक्र न कर कि मेरा गुजारा किमें चलेगा, ये जिम्मेवारी गुरु दी है, ये साडे गुरु दे। जरा गुरु कहता है ऊडे ऊड आवे सै कोसा, ते पाछे बचे छरिया, तेरे कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करया। जरा गुरु कहता है वाहगुरू याद करदा है रोज़ ही पहुँच जाती है, इस बारी गुरु दी है। रोज़ ही तन गुरु देवेगा, ये उसे छड़ दे। तुम दरबार से बाहर जो कि तेन मिल जावे, पैसा मिले धेरा मिले, उसको गुजारा कर, इस बारी गुरु दी है। कहते ठीक है जी। लग पाया कीर्तन कर। कुछ समय के बाद महाराजा रणजीत सिंह आया दर्शन करन, इशनान करन, दर्शन किए, इशनान किए। गल हुई सिंह साहब नाल प्रबंध बारे, कैसा चल रहा है। तो सिंह साहब ने दसिया एक रागी आया लहंदे देश का मनसा सिंह, वो कीर्तन करता है बड़े आनंद विच, मस्ती विच, ना तनख्वाह लेंदा है ना शायद भेंट लेंदा है। इतना लोड़वंद है कि ਉਹਦੇ घर रोटियां पकाउण लई लोहे का तवा भी नहीं है, मिट्टी के तवे ते रोटियां पकांदा है। महाराजा ने क्या बुलाओ, दर्शन करिए संतोखी पुरख दे, मतलब सेवा करिए। सिंह साहब ने शब्दार ने भेजा कि मैं मनसा सिंह जी पर महाराजा मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, दर्शन दो। सेवादार आया, भाई मनसा सिंह ने किया। इस तरह सिंह साहब ने गल की है महाराजे नाल, ते महाराजे नूं चाह चढ़िया है, तो दर्शन करना चाहता है, दर्शन दो। तो मनसा से कहते मेरे को की लड़े महाराजे ने, दर्शन करे जाते गुरु रामदास दे, मेरे के दर्शन करने उसने, यानी तेरी को सेवा करना चाहता है। तो भाई मनसा से कह लगा हुण मैं नहीं आता, मुझे आ ही आता, हुण मैं नहीं आता, मेरे कोई लोड़ नहीं, ना कर दी। सेवादार वापस आ गया और नहीं आता। महाराजे ने अपना मंत्री भेजा, तो मंत्री गल्लां कर लग गया, जे मंत्री करते ने अब शुक्र कर, तेरे को भाग जागे ने, तेन माझे याद किया है, आ बुला रहे है, ये लोग मिन्नतां कर तरले करते हैं, टाइम नहीं दिंदा, मुलाकात ही नहीं करता। बुला तो सही, कल तो सुन, इशारा देता तन तेरी को सेवा करना चाहता है। तो मनसा सिंह कहता है मंत्री नूं कि मैं गुरु रामदास दे शरीक दे मत्थे नहीं लगना। हैरान हो गया मंत्री, मैं की बोलता है, समझ ना आई, वापस चला गया। पूछा महाराज की आखद है, मंत्री कहता है वो बंदा लगता कुछ जिम्मे किराया घुमाता है थोड़ा जहा, गल उल्ट जरूर करता है। फिर की आखदा कि वो कहता है कि मैं गुरु रामदास दे शरीक दे मत्थे नहीं लगना। महाराज समझ गया। मतलब कहते वो नहीं आता, मैं जाना उस मैं जाना। मतलब तैयार हो गया ना, लाहौर लश्कर तैयार हो गया, मंत्रिमंडल तैयार हो गया, चल पाए।
किसी ने आकर दसिया मनसा सिंह तेरे घर महाराजा रणजीत सिंह आ रहे। तो देखा लश्कर आ रहा है तो दरवाजा बंद कर लिया, कुंडा मार लिया, बह गया। कुंडा मार के महाराज आया बूथ खड़ा। सिंह साहब ने आवाज़ मारी, मनसा सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह आए तेरे दर्शन वास्ते, बूहा खोलो। और कहता है मैं गुरु रामदास दे श्री मत्थे नहीं लगना। महाराजा गया तले की आवाज़ कहता है मैं मनसा सिंह जी तुम वास्ता गुरु रामदास का, बूहा तो खोलो। जो वास्ता सुनिया वो खोल दिता, हाथ जुड़ गए महाराज जी। कहते मैं मनसा सिंह जी तुसी गुरु रामदास दरबार कीर्तन करते हो, कीर्तन सुनाते हो। मैं गुरु रामदास दर दा झाड़ू बरदार हाँ, मैं कूकर हाँ, झूठे रोटियां खाने वाला। तुसी किवें कहते हो गुरु रामदास दा शरीक। मनसा सिंह कह लगा देख महाराजा मैं कीर्तन कर सुनाना गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने मेरे ते बख्शिश की हुई है। मसे बख्शे गरीबी कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। तो वो बख्शिश गुरु रामदास जी तू धन दे के हटाना चाहता है, श्री करो तो कौन होया। उसने हाथ जोड़ गए महाराज जी तो कहते हैं धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक ने ठीक लिखा है जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। बादशाह का भी बादशाह है। जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नहीं सदाई। जी अपना भला चाहता है तो शुभ कर्म करता होया अपने आप नहीं सदा। कहो नानक अमृत कर्मा सन परे की राखो सन्मान। एक दो तुकार रह गई ने, ये विचार सवेरे करेंगे तो अगे जिमें उसका हुक्म होगा उस तरह किया जाएगा। बोलना चौका माफ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।